الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم آنسنا في وحشة قبورنا. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 سے آغاز کریں گے. بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد حسد اور بغض کی وجہ سے مخالفت کی، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی کہ اللہ کے پاس صرف دین جو ہے نا وہ اسلام ہے جو قبول ہوئے گا. دوسرے ادیان پر اگر انسان دنیا سے جائیں گا تو اس کا وہ دین اللہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی آدمی جو میرے بارے میں سنے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور دین اسلام پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنمی ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں سرخ اور کالے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف ایک جگہ یا ایک خطے کے لوگوں کے لیے یا ایک جو ہے کنٹری کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. تو اس وجہ سے اب کوئی یہودی نصرانی یہ نہیں بول سکتے کہ ہم جو ہے نا یہودی نصرانی یہ نہیں بول سکتے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نصرانی بن کے بھی کامیاب ہو جائیں گے، یہودی بولیں گے یہودی بن کے بھی ہم کیا ہے کامیاب ہو جائیں گے. یہ انسان نہیں سوچ سکتا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اب صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے. بس اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور میرے ماننے والوں نے بھی. اور آپ اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے بھی اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا؟ بس اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا لیں گے، اور اگر روح گردانی کریں گے تو آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے. یعنی دین کی طرف بلانے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ صرف پیغام پہنچا دینا، لوگوں کے سروں پہ کھڑے ہو کے ان کو کیسے بھی ڈنڈے سے یا کیسے بھی ان کو جو ہے نا دین کی طرف لے کے آنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صرف اتنا ہی ہے کہ انسان جو بات اس کو معلوم ہے وہ آگے پہنچا دے. اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کی ایک جماعت سے اعراض کرتے ہوئے لوٹ جاتی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چند دن کے علاوہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان کی اختراع پردازی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو یہ بات جو ہے نا، یہ قول کیا کہ ہم بس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور جہنم میں گئے تو بھی تھوڑے دن کے لیے رہیں گے، یہ بالکل باطل قول ہے. نہ یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہنا، اور نہ ہی یہ کسی اور کے لیے جائز ہے. ہاں، توحید پر جو انسان رہے گا، اس انسان کو اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال لیں گے. لیکن اگر کوئی انسان مسلمان ہے لیکن اس کی زندگی میں توحید کا نام نشان تک نہیں ہے اور وہ شرک پر شرک کیا جا رہا ہے اور اسی پر وہ فوت ہوا، تو پھر اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. بس کیا حال ہوگا ان کا جب ہم انہیں ایک دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر آدمی کو اس کے
کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے اللہ حقیقی بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو آیات ہے اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ ایک تو یہ آیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرض والے انسان کو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات میں جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو عزت دینا چاہے تو اس کو دنیا میں عزت ملتی ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو عزت ذلت کا سوچ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دین پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ کیوں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اچھا میں یہ کروں گی، میں پردہ کروں گی، تب بولیں گے لوگ اللہ اچھا اتنے دنوں سے تو ایسے تھے، آپ کیا ہے بہت جن بن کے آ گئے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیتا، میری عزت چلے جاتی ہے، لیکن تو لوگ ذلیل کر دیں گے، ایسے ایسے باتیں بولیں گے، پتہ نہیں کیا کیا میرے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے آپ اپنی عزت اور ذلت کو یہ مت سوچیے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ عزت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور ذلیل کرنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اور بھلائی اور بیدک الخیر، اور ساری کی ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کرائٹیریا کیا ہے، ہمیں کیا دیا گیا ہے کہ کس کی ناراضگی اور کس کی رضامندی کی طرف اپنی نگاہوں کو رکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ساری کی ساری خیر ہے، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ چاہ کے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور لوگ چاہ کے بھی آپ سے کوئی بھلائی کو روک نہیں سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندے کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ بہت ہی پیاری بات ہے، انڈر لائن کے لیے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو اپنی روزی میں ذرا کمی دکھ رہی ہے، بہن کے پاس زیادہ ہے، نند کے پاس زیادہ ہے، جٹھانی کے پاس زیادہ ہے، دیورانی کے پاس زیادہ ہے، تو کیا کرنا، فل جلنا، اب ایسے ویسے باتیں کا بولنا اور ان کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کی، یہ ساری چیزیں یہ ایک مومن کا شعار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، انہیں کپڑے لا لے رہے ہیں ہما کو نہیں لا رہے ہیں، انہیں یہ چیز لا لے رہے ہیں ہما کو نہیں لا رہے ہیں، ہر وقت جو ہے نا برے سے برے باتیں کرنا، دل میں حسد اور کینہ رکھنا، یہ ایک مومن کے یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مومنہ ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فضل کی طرف نظر رکھتے کہ دینے والی ذات اللہ ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ دے سکتا تو میرے کو بھی دے سکتا، کمی میرے مانگنے میں ہے، کمی میری تڑپ میں ہے، میں اللہ سے نہیں مانگ رہی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کو کون دیے، ان کو بھی تو اللہ دیے نا، ان کے لیے اسباب بھی تو اللہ ہی کھولے، تو میرے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کھول سکتا ہے۔ آپ لوگ سنے ہی ہوں گے امبانی کے بارے میں، انڈیا کا سب سے مشہور آدمی ہے اور سب سے زیادہ امیر آدمی ہے، آپ لوگ کو معلوم ہے پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک لفظ لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن آج دیکھیے بلین اور ٹریلین اور کتنا بتا سب اربوں میں انسان ہے، اور مطلب اس کی جو جائیداد ہے اب تو دنیا سے گزر گیا، لیکن کتنا۔ تو اصل بات کیا ہے، آپ کی تعلیم، آپ کی ڈگری، آپ کی قابلیت یہ آپ کو رزق نہیں دلاتی، رزق دلانے والی ذات کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب ایک ان پڑھ شخص کو اللہ تعالیٰ انڈیا کا سب سے مالدار شخص بنا سکتا تو پھر آپ کو کیوں نہیں بنا سکتا۔ اصل چیز کیا ہے، ہم لوگ ہمارے اہلیت پہ، ہمارے قابلیت پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا پڑھنے کا کیا فائدہ، میں اسکول جا کے سن لیا، میں درس میں ہاں اسکول لے جانے والی ہوں میں تو خود جو ہے نا، یہ باتیں نہیں ہے۔ قابلیت حاصل کریے آپ، ٹھیک ہے، آپ اہلیت اپنے اندر پیدا کریے، لیکن توکل اس کے اوپر مت کریے۔ توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے انسان کو، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں اپنے بچے کو اچھے سے اسکول میں پڑھاؤں گی، اچھی سے اچھی اس کو تعلیم دلاؤں گی، دنیا میں اس کو قابل بناؤں گی، لیکن قابلیت کے اوپر توکل نہیں کرنا ہے۔ میرا بچہ اتنا قابل ہے، اب جہاں بھی جائیں گا اس کے لیے دروازے کھلے ہی کھلے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو انسان کو رزق دلاتا ہے، روزی کے دروازے کھولتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بنائے۔ ایک اہم چیز یہاں پہ، ایک اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، کسی بھی کافر کو آپ دلی دوست نہیں بنا سکتے، کیونکہ کافر آپس میں دوست رہتے، دلی دوستیاں ان لوگوں کے آپس میں رہتے، جب مسلمانوں کو کوئی نقصان دینے کا موقع آتا، کوئی مسلمانوں کے خلاف چیز ہوتی تو وہ آپس میں مل جاتے، اور آپ کے خلاف ہو جاتے، اور آپ جو ان کو اپنے راز کی باتیں بتا لیے تھے، اپنے بہت سارے مسلمانوں کی چیزیں بتا لیے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोग को पहले से रोक दिए कि आप काफिरों के साथ अच्छा मामला करो, अच्छा बात करो, उनको खिलाओ पिलाओ, घर आए तो मेहमान नवाजी करो, उनके साथ में अच्छे ताल्लुकात रखो। ठीक है, दावत है तो फिर उनको बुला सकते हो, उनकी दावत है जिसमें उनके बुतों की पूजा नहीं की जा रही है, कोई और चीज की पूजा नहीं है तो उसमें भी जा सकते हैं। जैसे कोई इंसान को प्रमोशन मिला, हम लोग दावत करें तो आप जा सकते हैं, खा सकते हो उसमें, खिलाइए कि कोई हराम चीज बना खिलाए। तो लेकिन इस दिली दोस्त नहीं बना सकते, उसकी इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे इंसान के दीन के ऊपर जद पड़ती है, आगे जाके इंसान को दीनी नुकसान में मुब्तला होना पड़ता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि मोमिनों के बजाय काफिरों को दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा अल्लाह उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मगर ये कि उनके शर से बचना मकसूद हो। यानी दोस्ती कब दोस्ती का इंसान कब हाथ बढ़ा सकता है? जब आपको लग रहा कि अगर मैं इनसे मिलजुल के नहीं रहूंगा या दोस्ती नहीं करूंगा तो फिर इन्हों मेरे को नुकसान देंगे। ठीक है, तो ऐसे मौकों पर आप उनसे दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन दिली दोस्ती जो है ना वो जायज नहीं है किसी भी सूरत में। और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। आप कह दीजिए कि तुम चाहे अपने सीनों की बातों को छुपाओ, बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही अहम बात अंडरलाइन कर लीजिए, क्या कि अपने सीनों की बातों को छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह उन्हें जानता है। तो जब भी ऐसा दिल में आ जा रहा है ना, हाँ मैं एक मालवी से मैं दिल में रख ले रही हूँ पूरा, बताती हूँ उनको, जब टाइम आएगा बताऊंगी, फिर नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह बचाए इस चीज से। क्यों? अल्लाह आपके दिल की बात को जानता, और आप नुकसान पहुंचाने के लिए इतना सब कुछ सोच लेके बैठे हुए होंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला शर वालों को कभी भी कामयाब नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से इंसान को हमेशा शर हो खैर हो, दोनों चीजों के बारे में ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दिल के हाल को जानता, इसलिए मैं हमेशा लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी अच्छा गुमान रखूं, अच्छे जज्बात रखूं, ताकि अल्लाह की नजर में मैं अच्छी नजर आऊं। सबके लिए हसद पाल के रख लिए दिल में, सबके लिए बुक्स पाल के रख लिए दिल में, सबके लिए नफरत पाल के रख लिए, सबके लिए जो है ना शिकवे शिकायत है, तो आप सोचिए अल्लाह की नजर में बहुत प्यारे दिखते, बहुत अच्छे दिखते, नहीं ना? अल्लाह की नजर में अगर मेरे को अच्छा नजर आना है, मेरे को प्यारा बनना है अल्लाह का, तो फिर मेरे को हर एक के लिए अच्छे जज्बात रखना है, अच्छा इंसान बन के जिंदगी गुजारना है। अल्लाह उन्हें जानता है, और जो कुछ आसमानों और जमीन में है उन्हें जानता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उस दिन को याद करो जब हर शख्स अपनी की हुई नेकियों को अपने सामने, अच्छा यहाँ पे एक और मैं बात मैं आप लोगों के सामने रखकर चलूं कि सीनों की बातों को छुपाओ या जाहिर करो, ये अल्लाह जानता है। बार दफा क्या रहता है, हम लोगों को डाउट रहता है, पता नहीं ये लोग सामने सामने तो बड़े अच्छे बने हुए रहते हैं, लेकिन दिल में कुछ और ही रखते हैं, ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है, सिक्स सेंस मेरे को ये चीज नजर आ रही सिक्स सेंस से। तो अब ऐसे में क्या करना, डर डर के अब उनके मिलना छोड़ देना, जाना छोड़ देना, आना छोड़ देना, ठीक है, ताल्लुकात न आए तो हटो बच्चों की पुकार लगाना ना, तब क्या करना, तब भी याद रखना अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक के दिल का जानता, हाल जानता। तो अगर इन्हों जाहिर में मेरे को अच्छे अच्छे बन बन के मेरे लिए मेरी जड़ अगर काट रहे, मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मेरे को नुकसान दे रहे, तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता। तो अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह ताला आपको मालूम है दिलों का हाल, दिलों के हाल से आप वाकिफ है, आप जानते हैं इनके जाहिर में इन्हों जो मेरे से इतनी अच्छी चिकड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हो, इतना मेरे साथ मिल मिल के रह रहे हैं, और मेरे राज ले रहे हैं, और मेरे से जो है ना मेरे घर के बातें और बाहर की चीजें जो है ना बातों बातों में पूछ ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं इनकी मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला मेरे को इनकी शर से बचा ले। लेकिन मामला पे खराबी नहीं करना है इंसान, बदगुमानियों की वजह से उनके घर आना जाना छोड़ देना, इनके घर आना जाना छोड़ देना, फिर किसके साथ रहेगा इंसान? ठीक है, खुद भी अगर हर एक को अपने से काट देगा और हर एक के लिए वसवसा पाल लेगा, जो कि शैतान यही चाह रहा, जो है ना आपस के इत्तेहाद को तुड़वाना चाह रहा। तो इस वजह से अल्लाह के सुपुर्द तमाम मामले करके इंसान को अच्छा रवैया अच्छा इखलाक अख्तियार करके जिंदगी गुजारनी चाहिए। उस दिन को याद करो जब हर शख्स अपनी की हुई नेकियों को अपने सामने पाएगा, अब और अपने किए हुए गुनाहों को भी चाहेगा कि काश उन बदआमालियों और उसके दरमियान बहुत दूरी होती। और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है, अल्लाह अपनी जात से डराता कि बुराइयों को छोड़ दो, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे इंतकाम लेगा, हिसाब लेगा। और अपना अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, यानी इंसान अगर माफी मांग लेगा तो अल्लाह माफी कर देते हैं। बंदों के ऐसा नहीं होता, हाँ बहुत देख रही हूँ तुम्हारा, एक दफा कर लिया, दो दफा कर लिया, अब तीसरी दफा दिखना नहीं, ठीक है ना, तीसरी दफा मैं तो माफ नहीं करने वाली हूँ, तीसरी दफा मेरे पास आना नहीं, मेरे से मामलात करना नहीं, ये बंदों के अल्फाज होते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा नहीं है। आप हजार दफा भी आपसे गलती हो गई, लेकिन आप सच्चे दिल से अल्लाह के पास गए, अल्लाह से माफी मांग लिए, अल्लाह ताला से बोले कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं करना चाह रही हूँ, आइंदा मैं हरगिज नहीं करूंगी, अल्लाह मेरे सच्चे दिल से मैं माफी मांग रही हूँ, मेरे को माफ कर दीजिए, अच्छी नेकी पर जिंदगी गुजारने की, तकवा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहीम है, अल्लाह रऊफ है, अल्लाह ताला रऊफ रहीम रऊफ बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है।
आगे आता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रही हैं। अब मैं पूछूंगी कि आप सबकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत वाली हस्ती कौन है? अल्लाह रसूल का नाम लेके। अगर नाम नहीं लिए तो फिर इंसान दूसरों का नाम लेता है, लेकिन जहाँ पे अल्लाह रसूल की बात आती तो इंसान क्या करता? हाँ, मेरे को अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह ताला मेरे लिए सबसे ज्यादा महबूब है, फौरन जुबान से बोल देते। तो अल्लाह ताला अब हम लोगों को चेक करने का क्राइटेरिया बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत के तुम दावे कर रहे हैं तो जरा देखो कि तुम्हारा अमल कैसा है। फत्तबिऊनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है ये आयत, क्या कि तुम कह दो लोगों को कि मेरी इत्तिबा करो, मेरे फुट स्टेप्स के ऊपर फॉलो करो। मैं जैसा खाने में, पीने में, मामलात में, शादियों में, दावतों में, फौजी में, हर मामले में मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारो। फत्तबिऊनी, इत्तिबा होता है आंख बंद करके किसी इंसान के पीछे चलते चले जाना, ये होता है इत्तिबा। और इताअत क्या होती है? इताअत होती है कोई आपको हुक्म दे कि फला काम करो, फला मत करो, तो हुक्म की फर्माबरदारी करना वो इताअत है। इत्तिबा और इताअत में फर्क क्या है? इत्तिबा यानी हर काम, जैसे कि हजरत उमर का भी हम लोग पढ़ रहे थे, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में क्या पढ़ रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर क्या करते थे? अगर रफे हाजत के लिए भी कहीं पर सफर में जाते वक्त में रफे हाजत भी अगर करना पड़ता, जरूरी था, आप कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन आप वही झाड़ के नीचे वही जगह पर जाकर वहीं पर रफे हाजत करते थे। तो ये इत्तिबा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जो है ना, लोग शीशियों में, अपने खुशबू की शीशियों में भर भर के रख लेते थे, उसको अपने लिए खुशबू में इस्तेमाल करते थे। ये मोहब्बत की दलील है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये नहीं कि इंसान मोहब्बत की खूब दावे कर रहा और जहाँ पे बात आ रही जरा किसी को माफ करने की, जरा किसी से गलती हो गई, कोई नाचाकी हो गई, कोई सामने वाले आपके साथ ज्यादती कर रही है, तो आप दिन में उसको सालों सालों तक पाल के रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तो ऐसी नहीं थी, फिर आप कैसा मोहब्बत का दावा कर रहे हैं अल्लाह ताला से, जबकि आपकी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा मौजूद ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो कैसी थी? रफीक और रहीम, बहुत ज्यादा बुर्दबार शख्सियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती थी। आप तो अपने सबसे ज्यादा ज्यादती करने वालों को भी माफ कर देते थे। हजरत हमजा आपके चचा, उनका जो सीना था वो चाक करके बल्कि चबाई थी हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने, तो जो आपके साथ बने बाद में, तो उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दिए। तो हम लोग को दीन क्या सिखा रहा? सिर्फ अल्लाह मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के दावे नहीं चलेंगे, कयामत के दिन इंसान को अमल से अपने साबित करना पड़ता कि वाकई में आप अल्लाह से मोहब्बत करते, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मैं और आप सब चाह रहे हैं ना, एक क्या है बात कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, आम सी बात है, आप करते हो, आपके जैसे हजारों करोड़ों पब्लिक करती। एक क्या है अल्लाह आपसे मोहब्बत करता, स्पेशल चीज है ना। हाँ, स्पेशल बात है कि अल्लाह जैसे हस्ती आपको वैल्यू दे, आपको महबूब रखे, आपसे मोहब्बत करे। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि अल्लाह मेरे से मोहब्बत करना, तो फिर मैं क्या करना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी जिंदगी गुजारना, हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना, तब जाके मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की महबूब बन जाऊंगी और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। आप कह दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अगर वो मुंह फेर ले तो अल्लाह काफिर से मोहब्बत नहीं रखता। बेशक अल्लाह ने तमाम दुनिया के लोगों के मुकाबले में आदम और नूह और आले इब्राहिम, आले इमरान को चुन दिया। अब चूंकि ये सूरत आले इमरान है, अब आगे यहाँ पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा। आले इमरान से मुराद क्या है? इमरान जो है ना, ये मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, हजरत ईसा इब्ने मरियम के क्या थे? नाना थे। ठीक है, तो इनके जो वालदा थे हन्ना, जिनका नाम आता है तफासिर में, तो उन्होंने अल्लाह ताला से खूब दुआ करते कि अल्लाह ताला मेरे को एक बेटा दीजिए, मैं वो बेटे को आपके दीन की सरबुलंदी के लिए लगा देती हूँ। वो बच्चे से मैं अपना खिदमत नहीं लूंगी, वो बच्चे से मैं अपनी कोई भी तवक्कुआत नहीं रखूंगी, वो बच्चे को मैं आपके दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। हम लोग कभी ऐसा चाहे नहीं, फिर क्या चाहते हैं? अल्लाह के हम फेवरेट बन जाना, हम ऐसी जबान से दुआ निकली कि नहीं कि हमारी दुआ अल्लाह ताला सुन लेना। कैसा होगा जब इंसान उन लोगों की शख्सियतों को फॉलो ही नहीं करा? तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने क्या करते, अल्लाह ताला से दुआ कर दे के मेरी नस्ल को चुन लीजिए, तो अल्लाह ताला चुन लेता। तो यहाँ पर वही बात है कि मुकाबले में आदम और तमाम दुनिया के लोगों के मुकाबले में अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को, नूह को,
अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आल इमरान को चुन लिया, जो एक दूसरे की नस्ल से है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मैंने तेरे लिए अपने पेट के बच्चे को आजाद करके नजर मान दी है, तो तू मेरी तरफ से उसे कबूल फरमा ले, बेशक तू ही खूब सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। बस जब उसने उसे जना, यानी औलाद में उन्होंने बेटा मांगे थे, बस जब उसने उसे जना तो कहा, ए मेरे रब, मैंने तो इसे बच्ची जना है, यानी ये तो बेटी हो गई, मतलब बेटा मांगी थी अल्लाह ताला। तो जो उसने जना है अल्लाह इसे खूब जानता था, यानी अल्लाह ताला दुआ सुने थे। आप जैसे भी कितने सारे खवातीन होंगी, खूब दिन रात बेटा बेटा बेटा, लेकिन बेटी हो जाती, तो अब क्या करना, मेरी दुआ सुन रहे इसने अल्लाह ताला, है ना। फिर अल्लाह के ऊपर नाउजुबिल्लाह इल्जाम देते, फिर औरत के ऊपर इल्जाम देते, औरत होके भी औरत की तहकीर, उसको हकीर जानते हैं कि बेटी कैसा हो गई, एक बेटी हुई, दो बेटी हुई, तीन बेटी हुई, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें ना औरत का कोई हाथ है ना मर्द का कोई हाथ है, अल्लाह है जो इंसान को दुआओं के बावजूद भी बेटा देता। दुआओं के बावजूद बात लोग उनको सिर्फ बेटे ही रहते, अब बेटी की दुआएं करते, बहुत ज्यादा दुआएं करते, लेकिन फिर भी बेटा ही होता। तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए बेटी बेहतर है या बेटा बेहतर है, हम तो वो मांग रहे हैं जो हमारा दिल चाह रहा है, लेकिन अल्लाह वो देता जो हमारे लिए खैर है, जिससे हमारे लिए भलाई है। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने बेटा मांगे थे, लेकिन उनको बेटी हो गई, तो बेटी होने के बाद में हैरत से उन्होंने पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला मैं तो आपसे बेटा मांगी थी, मैंने इसे बच्ची जना है। जो उसने जना है अल्लाह उसे खूब जानता था, और वो लड़का जिसकी उसने ख्वाहिश की थी उस लड़की की मानी नहीं, यानी जो काम ये बेटी से अल्लाह ताला, क्योंकि उनकी ख्वाहिश क्या थी, बेटा दीन की खिदमत करना, दीन के काम आना। अब यहाँ पर जो बेटी से अल्लाह ताला काम लेने वाले थे, खिदमत दीन लेने वाले थे, वो एक बेटे से नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हामिला बना के उनको बगैर वालिद के एक बच्चा देने वाले थे, मुआजिजा उनको अता करने वाले थे। एक नबी उनके बदन से आने वाला था, तो वो एक मर्द से तो हो नहीं सकता, अल्लाह ने फितरत ही नहीं रखी। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला उनसे वो काम लेने के लिए उनको चुन लिए थे। तो इसलिए क्या है, बहुत बड़ी सआदत उनको मिलने वाली थी, नसीब में उनके अल्लाह ताला कर दिए थे, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मरियम उनको दिया। तो उस लड़की की मानिंद रही जो उसे अल्लाह ने दिया। उम्मे मरियम ने कहा, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसे और उसकी औलाद को मरदूद शैतान के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। तो मरियम अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह की मर्जी की बच्ची है। ठीक है, आजकल लोग क्या बोलते हैं, मरियम नाम रखो रखो, बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं, अल्लाह की मर्जी की बच्ची है वो ऐसी बच्ची है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपने इरादे से, खुद अपने इज़्न से उम्मे मरियम को अता करे थे। तो इस वजह से कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, शुरू नहीं लेना चाहिए नामों की वजह से, इल्ला ये कि किसी का नाम वाकई में ऐसा है, बेवकूफ नाम तो वैसे रखते नहीं कोई भी, लेकिन ऐसा नाम है जिसका माना मतलब ही गलत है, अच्छा नहीं है माना मतलब, तो फिर आप उसको तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हमारी सहाबियात के या सहाबात से के नामों से, उनसे ये बदशुगनी लेना, नाउजुबिल्लाह उनके बारे में ये बोलना कि इन लोगों का नाम रखेंगे तो मुसीबतें बहुत आती, इन लोगों को उतना बड़ा मर्तबा भी मिलता है, ये क्यों नहीं सोचता इंसान। हम लोग उनका नाम रख रहे हैं तो हमारे बच्चे अल्लाह की नजर में क्या उनकी वैल्यू रहेंगी, क्या उनका मनसब रहेगा, क्या उनका मर्तबा रहेगा। ठीक है, वो निस्बत की वजह से इंसान नाम रखता हो, मोहब्बत की वजह से रखता, ना कि उसे बदशुगनी इंसान को लेना चाहिए। तो उसके रब ने उसे शर्फ कबूलियत बख्शा और उसको अच्छी नशोनुमा की, और जकरिया को उसका कफील बनाया। जब भी जकरिया उसके पास मिहराब में जाते, उसके पास खाने की चीजें पाते, वो पूछते कि अरे मरियम, ये चीजें कहाँ से तेरे लिए आई हैं? वो कहती कि ये अल्लाह के पास से है। बच्ची देखिए, बचपन से तौहीद है, अल्लाह ने उनके दिल में क्या है, उसको बिठा दिया था कि जब भी उनसे फलों के बारे में पूछते तो क्या बोलते, ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। उसी जगह और उसी वक्त जकरिया ने भी अपने रब से दुआ की, कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तूने अपने पास से अच्छी औलाद, मुझे तू अपने पास से अच्छी औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। और जकरिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांग रहे हैं। तो हमें भी क्या इससे अमल लेना चाहिए। क्या अमली नुक्ता में मिलता है कि कितनी भी जो है ना चीज इम्पॉसिबल नजर आए, कितना भी ऐसा लगे कि हालात बिल्कुल मुवाफिक है ही नहीं, बिल्कुल मुखालिफ हालात है, लेकिन फिर भी अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम चीजें अल्लाह के हाथ में है। फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह आपको यहिया की बशारत दे रहा है, बेटे के लिए दुआ करें, बेटा उनको अल्लाह ताला दे दिए, जो अल्लाह की कलिमा ईसा की तस्दीक करने वाला और सरदार और पाकबाज और सौले नबी होगा। जकरिया ने कहा, ए मेरे रब, मुझे लड़का कैसे हो सकता है जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है।
कहा उसी तरह। तो यहाँ पर क्या है, तमाम उन औरतों को जिनको बच्चा नहीं हो रहा, उनके लिए इस आयत में बहुत बड़ी ढारस है। आप हर कितने भी डॉक्टर्स आपको कुछ भी बोलने दीजिए, कितने भी हकीम आपको नाउम्मीदी दिलाने दीजिए, आप अल्लाह से बेहतरीन उम्मीद रखिए, क्योंकि अल्लाह आपकी इस्लाह गैबी तरीके से भी कर सकता है और अल्लाह आपको औलाद से भी नवाज सकता है, क्योंकि अल्लाह है जो कादिर है हर चीज पर। तो कैसे हो सकता है जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है, कहा इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। कहा ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। कहा तुम्हारी निशानी ये होगी कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिर्फ इशारे से बात कर सकोगे और अपने रब को कसरत से याद करो, और शाम को और सुबह को उसकी तस्बीह बयान करो। एक नेमत मिल रही ना, अल्लाह ताला बेटा दे रहे, तो आप क्या करो, सुबह शाम तस्बीह में गुजारो। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी आई फौरन ही अल्लाह की नाफरमानी के काम शुरू, है ना। बहुत सारी दावतें, ये वो चीजें, और उन सब में क्या है, अल्लाह की नाफरमानी के काम इंसान करता। फला डॉक्टर के पास गए, हम इतने दिन से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनकी वजह से ये औलाद हुई ना, ठीक है। वो उनो क्या है, सिर्फ एक जरिया है। देने वाली जात कौन है, अल्लाह है। तो कुल आप किसी को भी, किसी इंसान को नहीं समझ सकते। देने वाली जात क्या है, अल्लाह है। जो दवा है वो लेना जो है ना, ये शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमको सिखाया गया है कि आप असबाब इख्तियार कर लीजिए, लेकिन असबाब के ऊपर तवक्कल मत करिए। और जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें बरगजीदा बनाया, चुन लिया है तुम्हें और तुम्हें पाक किया और सारे जहानों की औरतों के मुकाबले में तुम्हें तुम्हें चुन लिया। ए मरियम, तुम अपने रब के लिए खाकसारी आजिज़ी अख्तियार करो और सजदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको बजरिए वही बता रहे हैं, और आप उनके पास उस वक्त नहीं थे जब वो अपने कलम बतौर करार डाल रहे थे कि मरियम की किफालत कौन करेगा। और जब वो आपस में झगड़ रहे थे, अब देखे बच्ची इतनी नेक है, अल्लाह वाली है, तो क्या है, पूरे लोग जो है ना, जितने भी वहां पर जो है थे, वो सब अपने अपने कुरानदाजी के लिए कलम डालने लगे कि ये बच्ची को हम पालेंगे, हम इनकी देख रेख करेंगे। और जब वो आपस में झगड़ रहे थे तो आप उनके पास मौजूद नहीं थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने कलीमे, एक कलीमे की खुशखबरी देता है। अब यहाँ पर ईसा इब्ने मरियम की बशारत आपको दी जा रही है, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, जो अब मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है। क्यों? क्योंकि वालिद तो थे नहीं, तो अल्लाह ताला का एक मौजूदा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा इब्ने मरियम को पैदा किया। तो ईसा इब्ने मरियम होगा जो दुनिया और आखिरत में बाइज्जत होगा और मेरे मुकर्रब बंदों में से होगा, और लोगों से गोद में और अधड़ मर्द को पहुंचने के बाद बात करेगा और मेरे नेक बंदों में से होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखे, नानी की दुआ है ये, माँ की नहीं। किसकी दुआ है? नानी की दुआ है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अता करे। तो आपको नहीं मालूम, मेरे को इतने दिन से मैं बेटा मांग रही थी, दुआ से अल्लाह ताला दिए कि नाउजुबिल्लाह, आपकी दुआएं हो सकता है आपके बच्चों के लिए कबूल हो। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नाउम्मीद इंसान को कभी नहीं होना चाहिए। मरियम ने कहा ए मेरे रब, मुझे लड़का कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ भी नहीं है। कहा इसी तरह अल्लाह जो चाहता है पैदा करते हैं। दूसरा मुआजिजा, अल्लाह जो चाहता है करता है, बगैर किसी औरत को छुए उसके बदन से बच्चा हो सकता नामुमकिन बात है। मुमकिन है? नामुमकिन बात है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये करके हम सब लोगों को दिखाए कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। ये मुआजिजा है अल्लाह की तरफ से। जब किसी चीज का फैसला कर लेता है तो वो जा कहता है और वो चीज हो जाती है, और अल्लाह उससे किताब का इल्म, हिकमत और तौरात और इंजील देगा और रसूल बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजेगा, जो उनसे कहेगा मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, और ये कि मैं मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊंगा, फिर उसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा हो जाएगा, और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे को और बर्ड्स वाले को ठीक कर दूंगा और मुर्दों को जिंदा कर दूंगा, और जो कुछ तुम खाते हो, जो अपने घरों में जमा करते हो, उनकी तुम्हें खबरें दूंगा। अगर तुम ईमान वाले हो तो इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है, और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुआ है उसकी उसकी मैं तस्दीक करने वाला हूँ, और ताकि मैं तुम्हारे लिए बाज उन चीजों को हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गई थी, और मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आएंगी। ये किससे कह रहे हैं? यहूद से कह रहे हैं।
کہ میں تمہاری کتاب تورات کو ماننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ آسانیاں لے کر آیا ہوا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہود مانے نہیں مانے، انکار کر دیے، سب لوگ نہیں مانے، بلکہ کچھ لوگ مانے اور ان کو ہم عیسائی کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کی دعوت تھی، جو کہ اللہ کے رسول کی اور تمام نبیوں کی بھی یہی دعوت تھی۔ بس عیسیٰ نے علیہ السلام نے ان کی جانب سے کفر کو ڈھانپ لیا، یعنی یہودیوں کے کفر کو آپ ڈھانپ لیے، تو کہا اللہ کے خاطر میری کون مدد کرے گا؟ اب کیا کفر تھا وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیے تھے یہودیاں؟ تو یہ چیز انہوں کیا ہے بھاپ لیے تھے۔ تو انہوں کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے، اعلان کرتے کہ کون ہے جو مدد کرے گا اللہ کی خاطر؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ۔ یہاں پر بہت ہی اہم نقطہ کیا ہے، حواری یہ نہیں بولے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا بولے؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی انسان دین کے لیے، دین والوں کے لیے، دینی مدارس کے لیے، دینی آرگنائزیشنز کے لیے، دینی پلیٹ فارمز کے لیے جو بھی خدمت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ انصار اللہ ہے، اللہ کا مددگار ہے۔ تو جب آپ اللہ کے مددگار بن رہے ہیں تو اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ آپ کو ثابت قدمی دے گا، اللہ آپ کو اس راستے کے لیے چن دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو، آپ کی کوششوں کو، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو یہ بہت ہی نصیبوں والی چیز ہے کہ اللہ کے دین کی دنیا میں آپ بہت سارے لوگوں کی بھی مدد کریے اور دوسری جانب اللہ کی مدد کریے۔ اللہ کی مدد زیادہ ہے کہ لوگوں کی؟ یقیناً اللہ کی مدد ایک عظیم چیز ہے اور سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں خواہش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنا انصار بنا۔ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اے ہمارے رب تو نے جو نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لے آئے اور تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے۔ اور انہوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ سازش کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ نے کیا تدبیر کی؟ آپ کو آسمان پہ اٹھا لینے کی۔ تو اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور کافروں کے خباثت آلود فضا سے تجھے پاک کرنے والا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت تک کافروں سے اوپر کرنے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں آپس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ بس جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اور صالح عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیتیں اور حکیمانہ نصیحتیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر والد کے، بغیر ماں کے پیدا کرے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا ہے، بغیر والد کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے کو نصارہ کیا سمجھ لیے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور مریم علیہ السلام کے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے جو نوازا تھا، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ میں وہ لوگ کیا ہے، شرک کر لیے۔ کیا کرے، مریم علیہ السلام کو بھی خدا سمجھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا سمجھے، اور ان دونوں کو بھی الہ بنا دیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم عیسیٰ کو اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، تم ان کو کیا کہہ رہے ہو کہ وہ جو ہے نا ہاں، وہ جو ہے نا خدا ہے، تو پھر ذرا سوچو کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر ان کو کیا سمجھتے، ان کو بھی خدا بنا دیتے تم؟ تو اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، پھر کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ بس جو کوئی آپ سے اس بارے میں آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑے تو کہہ دیجئے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو، یعنی کس بات میں جھگڑے کہ آپ صحیح سچے رسول ہے یا نہیں ہے، یہ کتاب قرآن یہ وحی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے سچی بات ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر اگر آپ کو شک ہے اس بات میں اور آپ سے جھگڑنے کے اوپر اتر آئے، یہ عیسائی لوگ ماننے سے انکار کریں آپ کو، تو آپ کیا کریے، مباہلہ کے لیے ان لوگوں کو دعوت دیجیے۔ مباہلہ کیا ہے، اللہ سے بددعا کرنا ایک دوسرے کے لیے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نذران سے ایک وقت آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے یہ پیشکش رکھے تھے، ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو اور اپنے اپنے کو آپ کو اکٹھا کرنے اور پھر عاجزی کے ساتھ
اللہ के सामने दुआएं करें कि अल्लाह झूठों पर लानत भेजे। तो फिर डर गए थे उन लोग, नहीं आए फिर मैदान मुबाहिला के लिए, नहीं आए। बेशक यही सच्चा बयान है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। बस अगर वो एराज करे तो बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को खूब जानता है, क्योंकि उनकी किताबों में ये चीजें पहले से मौजूद थी। इंजील में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान हो गए थे, लेकिन जानने के बावजूद भी उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, माना नहीं। आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब, आओ एक कलमे पर जमा हो जाए जिसमें हम और तुम बराबर है, यानी तौहीद, और ये कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करे और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाए, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा माबूद ना बनाए। बस अगर वो एराज करे तो मुसलमानों, तुम कह दो, गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। भाई अहले किताब, इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और इंजील तो उनके बहुत बाद नाजिल हुई थी। क्यों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी बोलते थे कि वो यहूदी है, ईसाई बोलते क्यों ना ईसाई है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, इंजील भी और तौरात भी दोनों ही किताबें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में आई हैं दुनिया में, तो उन्हें यहूदी कैसा हो सकते, नसरानी कैसा हो सकते? क्या तुम समझते नहीं हो? कम अक्लो, तुमने कज बहसी कर ली जिस बारे में तुम्हें कुछ इल्म था, लेकिन जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं, उसमें क्यों कज बहसी करते हो? और अल्लाह जानता है और तुम लोग नहीं जानते। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि मुवहिद मुसलमान थे, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे, क्योंकि यहूद भी शिरक कर रहे, ईसा अलैहिस्सलाम को और बछड़े को माबूद बना लिए, और नसारा भी शिरक कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को खुदा बना के। लोगों में से सबसे ज्यादा इब्राहिम के हकदार वो लोग हैं जिन्होंने उनकी इत्तेबा की। वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर है, और ये नबी और जो लोग ईमान लाए, अल्लाह मुमिनों का दोस्त है। अहले किताब, अहले किताब का एक ग्रोह चाहता है कि वो तुम लोगों को गुमराह कर दे, यानी नसरानी या किसी तरीके से क्रिश्चियन या यहूदी बना दे। हालांकि वो लोग सिर्फ अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें उसका एहसास नहीं है। ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों को क्यों इनकार करते हो, हालांकि तुमने उनकी हक्कानियत की गवाही देते रहे हो? यानी तुम्हारी किताब में ये बातें पहले से मौजूद थी और तुम ये बात को मानते भी थे। अब अचानक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हो गई तो तुम लोग क्या है, इनकार कर रहे हैं। ऐ अहले किताब, तुम हक को बातिल को क्यों खलत मलत करते हो और जानते हुए हक को छुपाते हो? और ऐ अहले किताब के एक ग्रोह ने और अहले किताब के एक ग्रोह ने कहा कि ईमान वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर तुम लोग दिन चढ़े ईमान ले आओ। ये एक साजिश वो लोग कर रहे थे क्या, कि यहूदियों का और नसरानियों का, क्योंकि प्रोपेगेंडा चल रहा नहीं था यहूदियों का, हर साजिश उनकी फेल हो रही थी, हर प्रोपेगेंडा उनका फेल हो रहा था, अल्लाह की मदद आते ही जा रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट मिलते ही जा रहा था। तो अब एक क्या करे कि लोगों को, दूसरे लोगों को वर्गलाने के लिए एक साजिश रचे, एक प्लानिंग करे कि हम लोग सुबह में ईमान लेके आएंगे और शाम तक क्या है, इस्लाम से फिर जाएंगे। अब लोग तो लोगों को देख के क्या लगता, कह रहे ये दीन सही नहीं, इतने इतने लोग जो है ना इसको छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये भी एक उनकी साजिश थी जिसका पर्दा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फाश कर दिया। और अहले किताब के एक ग्रोह ने कहा कि ईमान वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर तुम लोग दिन चढ़े ईमान ले आओ और शाम के वक्त इनकार कर दो, शायद कि वो लोग अपने दीन से फिर जाए, और तुम लोग सिर्फ उसी पर एतमाद करो जो तुम्हारे दीन की इत्तबा करता है। यानी आपस में ये लोग क्या बोल रहे थे, क्या सिर्फ यहूदी बोलते हैं सिर्फ यहूदियों की बात सुनो, और नसरानी बोलते हैं सिर्फ नसरानियों की बात सुनो। आप कह दीजिए कि असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है, और हरगिज ना मानो कि किसी को वैसा ही दीन दिया जाएगा जैसे तुम्हें दीन दिया गया है। यानी आपस में ये लोग क्या बोल लेते थे कि यहूदी क्या बोलते हैं, हमारा दीन सबसे सही है, नसरानी क्या बोलते हैं, हमारा दीन सबसे सही है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके किताबों में उनके पास जो वही थी उसमें सब बातें मौजूद थी, लेकिन फिर भी झुठलाते थे। या वो लोग तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करेंगे। आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह के हाथ में है, यानी नबूवत अता करना, रिसालत अता करना, किसी को नबी बनाना, चुन लेना, दीन की तरफ उनको जो है ना रहबर बनाना लोगों के लिए, ये अल्लाह के इख्तियार में है। तुम कैसा इसको अपने लिए खालिज करके रख लिए? जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह बड़े बड़ा वुसाअत वाला और बड़ा जानने वाला है, जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर देता है, और अल्लाह फजल अजीम वाला है। और अहले किताब में से बाद ऐसे होते हैं जिन्हें अगर एक खजाने का अमीन बना दोगे तो वो तुम्हें लौटा देंगे। यानी सब अहले किताब में ऐसे नहीं है बदमाश छटियल, ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी है उनके अंदर। वो लोग उनको जब आप एक खजाने का अमीन बनाएंगे तो वो खजाना पूरे का पूरा आपको वापस लौटा देंगे, धोखा नहीं देंगे, और उसमें कोई भी खयानत नहीं करेंगे। और उनमें से बाज ऐसे होते हैं कि अगर एक दीनार का भी उनको अमीन बना दो, एक दीनार भी उनके पास
अगर रखोगे तो वो तुम्हें नहीं लौटाएंगे, मगर ये कि उनके सर पर सवार हो जाओ। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि इन अनपढ़ों के साथ बदयांती करने से हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उनका ये बातिल अकीदा था, क्या समझते हैं कि दूसरे लोगों के, खाली यहूदियों को जो है ना हम लोग अच्छा ट्रीट करना, बाकी जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ कैसा भी बिहेव करो, उन लोगों के साथ जुल्म करो, क्या भी करो, हम लोग को कुछ गुनाह नहीं होता। ये उनका बातिल अकीदा है, अल्लाह यहाँ पे बयान कर रहे हैं। और अल्लाह के बारे में जानते हुए किस बयानी करते हो, झूठ बोलते हो। हाँ, जरूर गुनाह होगा। जो शख्स अपना अहद पूरा करेगा और अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। तो फिर बेशक जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद और अपने कस्मों के बदले में कोई मामूली कीमत कबूल कर लेते हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा उनको नहीं मिलेगा। अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा और कयामत के दिन उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा और ना उन्हें पाक करेगा, और उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो इससे अहदों की किस तरीके से पूछगछ होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। पिछले भी आयतों में हम लोग पढ़ लिए थे ना, क्या कि वो शख्स जो दीन के इल्म को हो है, उसके पास रहने के बावजूद भी छुपाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना उसको पाक करेगा, ना उसकी तरफ नजर उठा के देखेगा, ना ही उनसे बात करेगा, और उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और यहाँ पर भी दूसरी चीज क्या बता रहा है, अहदों को तोड़ने वाले, कस्मों को हल्का जानने वाला, वो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके भी कयामत के दिन ऐसा ही करेगा। हाँ, कसम खा लिए, कैसा भी मौका था, अब बाद में क्या है उसको तोड़ देंगे, कौन इतना देखते, कौन इतना वो करते ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पकड़ करेगा, आपकी सख्त पकड़ होंगे। बल्कि कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना उनकी तरफ नजर उठा के देखेगा, ना ही उन्हें पाक करेगा, और उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। खास तौर पे अंबिया को मानने की जो अहद पैमान था जो इन लोग करे थे। और उनमें से बेशक ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जबानों को किताब पढ़ते वक्त मरोड़ते हैं, ताकि तुम लोग उसे किताब का हिस्सा समझो। यानी अपनी बातें भी क्या है, क्योंकि अब जो उम्मत थी, जो यहूद के जो उलमा थे उनके पास तो इल्म था, वो लोग ये किताब सिर्फ अपने लिए मखसूस कर लिए थे। हमारे जैसा कुरान मजीद हर एक पढ़ना जैसे आजाद है, हम लोग हर एक पढ़ सकते हैं, हिफ्ज कर सकता है, ऐसा उन लोग के पास इजाजत ही नहीं थी। वो ना अल्लाह की तरफ से वो पाबंदी नहीं थी, बल्कि वो लोग खुद बना लिए थे, खुद अपने लिए क्या कर लिए थे, उसको मखसूस कर लिए थे कि सिर्फ उलमा है जो ये किताबों को पढ़ सकते, इससे इल्म ले सकते हैं, और पब्लिक क्या करेंगे, इससे हम लोग जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी बात कर रहे हैं कि अपनी जुबानों से किताब को पढ़ते वक्त में अहकामात को क्या करते हैं, उसको रद्दोबदल कर देते, फेर देते उसको, अपनी मर्जी का बातें उसके अंदर मिला देते, और लोगों को कैसा दिखाते हैं, ताकि तुम लोग उसे किताब का हिस्सा समझो। लोगों के सामने ऐसा बयान करते हैं जैसा वो भी मीन अल्लाह है, वही है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं होता। एक और खराबी अहले किताब की, और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, हालांकि वो अल्लाह के पास से नहीं होता। कितनी बुरी बात है कि इंसान जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो बातों को, वो चीजों को अल्लाह की तरफ मंसूब करे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल नहीं करे। जैसे आज की बहुत सारी बिदअतों को आप देख लीजिए, वो नऊजुबिल्लाह दीन का हिस्सा उसको बना दिए लोग, दीन दीन उसको बना दिया, हालांकि वो दीन और शरीयत के हिस्सा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की तरफ से वो है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों को ना हुक्म दिया, ना किया, ना आपके सहाबा ने किया, ना ताबेईन ने, तबा ताबेईन ने, कोई भी उसको दीन के नाम पर वो अमल करे ही नहीं। लेकिन आज हम क्या समझ रहे हैं, उसको दीन का हिस्सा समझ रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहा तो उससे पूछ कर ले रहे हैं, उससे उसके घर को आना जाना बंद कर दे रहे हैं, उससे ताल्लुकात कम कर ले रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पर इंसान को और खौफ करना चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, हालांकि वो अल्लाह के पास से नहीं होता, और जानते हुए अल्लाह के बारे में झूठ बयानी करते हैं। ये नामुमकिन है कि अल्लाह एक आदमी को किताब और हिकमत और नबूवत दे, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। यानी अल्लाह वालों का ये काम नहीं है कि वो लोगों को क्या करे, अपने से जोड़ना शुरू कर दे, ओ मेरे मेरे जो है ना मेरे खिदमत करो, मेरे साथ जो है ना पूरा मान लगाओ, और मैं जब भी आ रहा हूँ तो मेरे पाँव पड़ पड़ के धो, और मेरे को जो है ना हाजी और इस तरीके के नाम दे दो, और मेरे लिए जो है ना कुर्बान चले जाओ। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या करें, दीन के नाम पे अपने गर्विदा बना ले रहे हैं, अपने अपने जो है ना आसपास लोगों को जो है ना जमा कर करके अपने अपना जो है ना उन लोगों को गुलाम बना ले रहे हैं। तो इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इल्म वाले हैं, जो दीन वाले हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि तुम अल्लाह से जोड़ो, लोगों को रब्बानी बनाओ, अपना गर्विदा, अपने अपने जो है ना तरफ घूमने वाला, अपनी झूठ को भी सही को भी हर चीज को मानने वाला, आंखों की पट्टी बांध के आपके पीछे अतराव फिरने वाला, ये बनाने का नहीं है हम आपको।
तो फिर वो लोग कहें कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, हालांकि वो कहेगा कि तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ। तो दीन वालों का काम क्या है कि लोगों को अल्लाह वाला बनाना है, इस वजह से कि तुम लोग दूसरों को अल्लाह की किताब सिखाते थे और खुद भी उसे पढ़ते थे, और ये भी नामुमकिन है कि वो तुम्हें फरिश्तों और अम्बिया को रब बना लेने का हुक्म दे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफ्र के हुक्म देगा? और जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया कि मैं तुम्हें जो कुछ किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो तुम्हारी चीजों की तस्दीक करे, तुम उस पर जरूर जरूर ईमान लाओगे। तो ये सिर्फ अहले किताब से नहीं बल्कि अंबिया से भी यह अहद लिया गया था कि जब भी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि आदम अलैहिस्सलाम के बाद में सबसे पहले नबी कौन आए? नूह अलैहिस्सलाम है, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम की तस्दीक आदम अलैहिस्सलाम करना था, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद में जो अंबिया आए उनकी तस्दीक नूह अलैहिस्सलाम करेंगे। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम किसकी तस्दीक करे? मूसा अलैहिस्सलाम की करे, उनकी सच्चा बताए। और ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्दीक कौन करे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। तो सिर्फ पब्लिक से नहीं, अहले इल्म से नहीं और अहले किताब से नहीं, बल्कि अंबिया से भी ये चीज ली गई है, मिसाक लिया गया कि तुम अपने पहले आने वाले अंबिया को सच्चा बताएंगे, उनकी किताबों को मानेंगे तुम। लेकिन अहले किताब जो कि यहूद और नसारा है, वो इस काम से फिर गए, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना और काफिर ठहराए गए। तो इस पर जरूर ईमान ले आओगे, तो उसकी जरूर मदद करोगे, सिर्फ मानना ही नहीं बल्कि वो पैगंबर, वो नबी जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है उसकी मदद भी करोगे। अल्लाह ने कहा क्या तुम लोगों ने इकरार कर लिया और उस पर मेरा अहद कबूल कर लिया? उन्होंने कहा हमने इकरार कर लिया। अल्लाह ने कहा बस तुम लोग गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। बस जिसने उसके बाद एराज किया वही लोग फासिक है। तो अंबिया से भी यह दिया गया कि वो लोग पिछली किताबों को, पिछले नबियों को मानेंगे, और जो नबी उस दौर में अगर कोई रहेगा तो उसकी मदद भी करेंगे। बाज दफा ऐसा हुआ भी कि एक ही वक्त में एक कौम की तरफ दो नबियां, तीन नबियां, चार नबियां, ज्यादा भी अंबिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजे। तो क्या वो अल्लाह के दीन के अलावा कोई दूसरा दीन चाहते हैं? यानी दीन इस्लाम पसंद नहीं आ रहा है, अब इसके अहकाम पसंद नहीं आ रही, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, ये कैसा करना, वो कैसा करना, अब हम लोग को नया दीन दे दो, बात चीजें ऐसे दे दो जो हम लोग कर सकते हैं और बात तो पूरी हमारी मर्जी कर दे। तो क्या ये जायज है? हालांकि आसमान और जमीनों में जो कुछ है सब ने बरिदा और बगैर रिजा उसी के सामने गर्दन झुका रखे। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम नहीं भी मानोगे तो दुनिया की और आसमान और जमीन के सारे आलम की चीजें अल्लाह के सामने झुके हुए अल्लाह का हुक्म मान रही, और सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए और उस पर जो हम पर नाजिल हुआ, और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद पर नाजिल हुआ, और जो मूसा और ईसा और दीगर नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। तो इससे क्या बात पता चलती? किसी नबी के, किसी नबी या किसी वली या किसी जो है ना रसूल को आप फर्क नहीं कर सकते अपनी तरफ से, हाँ हमारे रसूल बहुत बड़े, उनके रसूल छोटे। जैसा यहूदी क्या करते, मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा बनाते, इसी तरीके से ईसाई क्या करते, ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा बनाते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो दर्जे मुकर्रर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा सबके ऊपर आला है ही, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको आला करार दिया। कि हम मुसलमान अपनी तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला दर्जा नहीं दिया, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो उनको सबसे आला दर्जा दे। तो हर एक का अपना मुकाम है और वो अल्लाह तय करेगा, लोग नहीं तय करेंगे। तो इस वजह से ना उलमा में तफरीक करना चाहिए, वो आलिम बड़े ये आलिम छोटे, उन्हों उन्हों ज्यादा वो है। हाँ इज्जत सबकी करिए, आप सबको इल्म, सबसे इल्म से आप फायदा उठाइए, उनकी सही तालीमात को आप लीजिए, उनसे रहनुमाई हासिल करिए, मगर एक को ज्यादा जो है ना वो करके और दूसरों को जो है ना कम आंकना, ये जायज नहीं है। और हम उसी के लिए अपनी गर्दन झुकाए हुए हैं, और जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन चाहेगा तो उसकी तरफ से कबूल नहीं किया जाएगा, वो आखिरत में घाटा पाने वालों में से होगा। अल्लाह कैसे हिदायत देगा ऐसे लोगों को जो ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर हो गए, और अपनी इस गवाही के बाद रसूल बरहक है और उनके पास खुली निशानियां आ जाने के बाद, और अल्लाह जालिम कौमों को हिदायत नहीं देता। यानी जो हर धर्मी के बावजूद, हर धर्मी से दीन के रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते के ऊपर जमे रहेंगे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर हिदायत नहीं देते। ऐसे लोगों का बदला यह है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम बनी इंसान की लानत पड़ गई। वो लोग, यानी हिदायत ना मिलना ये दरअसल
اصل کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اللہ بچائے ہم لوگ اس سے۔ وہ لوگ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، معلوم ہو گیا آپ کو حق کیا ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز بدعت ہے، کیا چیز توحید ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب وہ پچھلی روایتیں، پچھلی چیزیں، پچھلی باتیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اب ایک اللہ کے ایک الہ کو ماننے کی طرف آ جانا ہے، اور تمام رسومات کو جو دنیاوی ہے، جو لوگ بنائے سو ہے، ان کو چھوڑ کر سچے دین کی طرف آ جانا ہے، اور پچھلی زندگی سے توبہ کر لینا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا، یعنی وہی حالت میں رہے، دین کو چھوڑ دیا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی ویسے ہی مر گئے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہی لوگ حقیقی معنوں میں گمراہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے، ان کی طرف سے زمین بھر کر سونا بھی اگر بطور فدیہ دیے گے تو قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دین کتنی بڑی نعمت ہے، ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو ملے۔ اگر انسان دنیا سے نعوذ باللہ کفر کی حالت میں چلے گیا، شرک کی حالت میں چلے گیا، تو پوری دنیا بھی اگر فدیے میں دے دے رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے انسان کو۔ تو تم لوگ بھلائی ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک کہ، اب یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوگا، بہت ہی پیاری آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا ہرگز نہیں پا سکتے تم البر نیکی کو، بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی، بڑی نیکی، تو بڑا نیک انسان تم بن نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو یا وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ یعنی اگر تم نیک بننا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریبی بننا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بننا چاہ رہے ہیں، پھر دین کے مقابلے میں جو چیز بھی آڑ آئیں گی اس کو تو کچھ نہیں آنکیں گے، اس کی قربانی دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ فجر کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، وہ ٹائم پہ نیند بہت پیاری ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہے؟ فجر کی نماز ادا کرو۔ تو اب ہم کیا کرنا ہے؟ وہ پیاری چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اسکلز دیے ہوئے ہیں، دنیاوی اسکلز ہے، مہارت ہے آپ کے پاس، بہترین ٹائپنگ کر سکتے ہیں، بہترین آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، بہترین آپ کے پاس جو ہے نا انفوگرافکس کی اور ڈیزائننگ کی اور گرافکس کی، اس طریقے سے آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی نالج ہے آپ کے پاس، تو آپ دین کی خدمت کے لیے اس کو لگائیے، آپ دنیا کے لیے اس کو لگا سکتے، لیکن وہ محبوب چیز کو آپ کیا کریے؟ اس کو دین کے لیے لگائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پھر چیز آپ کو نیکی کی طرف لے جائیں گی، آپ کو نیک بنائیں گے، آپ کو اللہ کی نظروں میں جو ہے نا چہیدہ بنائیں گے۔ تو تم لوگ بھلائی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہے، غصہ انسان کو بہت زیادہ محبوب رہتا ہے، کب؟ جب غصے کی حالت میں آپ رہتے، ٹھیک ہے، جب آپ کو دوسرے پہ ناراضگی رہتی، اس وقت آپ کو غصہ چھوڑنا بڑا مشکل رہتا، غصہ آپ کو اس وقت محبوب رہتا۔ تو اگر اس وقت آپ غصے کو پی جائیں گے، وہ چیز چھوڑ دیں گے، اللہ کے خاطر وہ معاملے کو ختم کر دیں گے، تو آپ پھر نیکی کو پا سکتے، آپ نیک بن سکتے۔ تو یہاں پر اپنے کو ایک اصول دے دیا گیا، ایک کرائٹیریا دے دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک میٹر دے دیا گیا کہ اس کے اوپر جانچو اگر میں اور آپ نیک ہے یا نہیں ہے، دیکھنا ہے اپنے آپ کو آنکنا ہے، اپنی نیکی کو پہچاننا ہے، دیکھنا ہے کہ میں واقعی میں نیک ہوں یا نہیں ہوں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف نیکی کے دعوے کرتے ہوئے چلے جانا ہے، نعرے لگانا ہے نہ، پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے میرا عمل کیا ہے۔ جب اللہ رسول کی بات آتی، جب دین کی کوئی بات آتی، جب قربانی کی بات آتی، تو کیا واقعی میں اپنے نیند کو، اپنے جذبات کو اور اپنے جو ہے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا سکتی ہوں؟ ایک وقت ہے آپ کو بریانی بنانا دل بڑھ رہا ہے، لیکن دوسرے ٹائم پہ آپ کو کلاس ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار ہے آپ کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا ہے، تو آپ کیا بریانی قربانی دیں گے؟ کیا آپ کھانے کی قربانی دیں گے؟ کیا آپ دین کو ترجیح دیں گے؟ یہ ہے جو آپ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ ہے جو آپ کو نیک بناتا۔ اگر آپ نہیں دے سکتے، آپ دنیا کو زیادہ ترجیح دیں گے، دنیاوی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیں گے، تو پھر آپ نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ متقی محسنین میں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے بندوں میں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریبی بندوں میں سے آپ بن نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نیکی کی اپنی پیاری چیز کو قربانی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی جو بھی پیاری چیز ہے، اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے آپ کو دے دینا پڑ رہا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو آپ اس کو دے دیجئے، کیونکہ یہی آپ کے نیک بننے کا کرائٹیریا ہے۔ تو تم لوگ بھلائی ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک کہ اللہ کے راہ میں وہ مال خرچ نہیں کرو گے، وہ چیز خرچ نہیں کرو گے جسے تم محبوب رکھتے ہو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
बनी इसराइल के तमाम खाने हलाल थे सिवाय उसके जिसे याकूब ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने ऊपर हराम कर लिया था। ए नबी, आप उन यहूदियों से कहिए, अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ, उसे पढ़ो। बस जो लोग उसके बाद, यानी हलाल और हराम ये अल्लाह की तरफ से है, ये लोग नहीं बना सकते। बनी इसराइल क्या करे, अपनी तरफ से कुछ चीजों को हराम ठहरा कर लिए थे, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम एक बीमारी की वजह से उन्होंने अपने खाना छोड़ दिए थे, लेकिन बनी इसराइल क्या करे, उसको हराम ठहरा लिए थे। तो ये ना उन लोगों के लिए जायज था अहले किताब के लिए, ना हम मुसलमानों के लिए जायज है। आओ गाय का गोश्त नहीं खाना, ठीक है, गलीज चीज है वो, नाउज़ु बिल्लाह, ऐसी बातें आप नहीं कर सकते। आप मुसलमान होके किसी चीज को जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया है, आप उसको तहकीर की निगाहों से नहीं देख सकते। आपका दिल नहीं चाह रहा, मत खाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन लोगों को जो खाते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इजाजत दी है, उसको वो आजादी को जो है कबूल कर रहे हैं, और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, तो आप एक चीज को हकीर नहीं कर सकते, आप उस चीज को हकीर नहीं जान सकते, ये फिर आपके ईमान में नक्स कहलाएगा। तो बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे सिवाय उसके जिसे याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात में नाजिल होने से पहले अपने ऊपर हराम कर लिया था। ए नबी, आप उन यहूदियों से कहिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ, उसे पढ़ो। बस जो लोग उसके बाद अल्लाह के बारे में झूठ इफ्तरा बर्दाजी करेंगे, वही लोग जालिम होंगे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ने सच कहा है, बस तुम लोग इब्राहिम के दीन की पैरवी करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी कौन कर रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि मैं दो ज़बीउल्लाह की औलाद में से हूँ। एक तो उनके वालिद अब्दुल्ला और दूसरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो मुवहिद थे, क्योंकि वो भी तौहीद पर थे, और हमारा दीन भी हमको क्या दर्ज देता? तौहीद का दर्ज देता, और मुशरिकीन में से नहीं थे। बेशक अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो है जो मक्का में है, यानी पहला घर बैतुल मुकद्दस, बैतुल मकदस नहीं है, मस्जिद अक्सा नहीं है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में है क्या कि मस्जिद अक्सा को क्या बोलते हैं, अव्वलीन जो है उसको घर करार देते हैं, लेकिन अव्वल घर जो अल्लाह के नाम पे बनाया गया वो क्या है? बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर बैतुल्लाह है। बेशक अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया है वो है जो मक्का में है, और तमाम जहान वालों के लिए बाहर से बरकत और हिदायत है ना। हमारे लिए वहां जाते हैं तो इंसान का खूब खूब ईमान बढ़ता, और वहां जाते जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने को पूरी चीजें दिखाते कि कहाँ कहाँ से लोग कैसी कैसी चीजों को लेकर कैसी अल्लाह की बरकत के रेल पे है वहां पे। उसमें कई खुली निशानियां हैं, सफा है, मरवा है, इसी तरीके से जंग ओहद, बदर, वो सारे मकामात भी है, खुली निशानियां हैं। मुकाम इब्राहिम है, और जो उसमें दाखिल हो जाता है यानी काबा में अमल में आ जाता है, और अल्लाह की रजा के लिए बैतुल्लाह का हज करना उन लोगों पर फर्ज है जो वहां पहुंचने की इस्तेताअत रखते हो। 5 साल तक अगर नहीं गए, आपके पास माल है तो फिर पकड़ होती है इंसान की, और जो इनकार करेगा तो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है नबी। आप कहिए कि अब यहाँ पर मदीना के यहूद जो थे उनकी मुसलमानों से दुश्मनी, उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि ए नबी, आप कहिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों को क्यों इनकार करते हो, और जब तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उस पर गवाह है। ए नबी, आप कहिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह के रास्ते से उन लोगों को क्यों रोकते हो जो ईमान ले आए हैं, उसमें ऐब जो ये करते हो, हालांकि तुम उसके दीन बरहक के होने पर दिल से मुअतरिफ हो, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से गाफिल है। ये अहले किताब का वतीरा था, क्या करते थे? मुसलमानों को नौजुबिल्ला तान तशनी देना, उन लोगों का मजाक उड़ाना, क्योंकि मुसलमान जो है ना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ अपना जो है माल तिजारत घर वाले अहलो अयाल अपनी सब कुछ छोड़ के वो लोग अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर मदीना हिजरत करे थे। तो जब मदीना आए तो मुसलमान गरीब थे, ऑब्वियसली उनके पास ना माल था, ना जायदाद थी, ना कोई और चीज थी। तो यहूदिया क्या करते थे? उन लोगों का फुल मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर उन लोगों को आर दिला रहे हैं इस चीज से कि मत करो ऐसा, तुम कैसे दीनदार हो कि तुम दीन पर चलने वालों को आर दिलाते हो। तो हमारे लिए भी जायज नहीं कि हम किसी दीनदार को नाउज़ु बिल्लाह, दीन पर चलने वालों को दीन की वजह से नाउज़ु बिल्लाह उनके ऊपर दान तशनी करें। ऐ ईमान वालों, अगर तुम लोग अहले किताब के एक ग्रोह की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें ईमान के बाद दोबारा काफिर बना देगा, यानी खुद काफिर है, खुद दीन से दूर है, खुद दीन की कोई वैल्यू नहीं करते। ऐसे लोगों के पीछे चले तो तुम्हारा भी वैसे बना देते, खुद कभी दर्द सुनने नहीं आते, दौरा कुरान नहीं सुनते, अल्लाह की किताब नहीं सुनते। अब आप उनके पास जाइए, उनके बैठिए, उनकी बातें सुनिए, तो आपको क्या बोलते हैं? जाओ, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम नहीं बोलते, क्या जरूरत है वो सब चीजों की टाइम वेस्ट, है ना, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या जरूरत है इतना पढ़ने लिखने की? थोड़े बहुत बातें मालूम हो गए तो बस से उस पे अमल कर लेना है, क्या जरूरत है इतना इल्म हासिल करने की? नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ठीक है, तो वो भी आपको अपने जैसे बना लेंगे। जो लोग अल्लाह से दूर होंगे वो आपको किसी तरीके से अल्लाह से खरीद करेंगे नहीं।
वो भी आपको अपने जैसे अल्लाह से दूर कर देंगे। तो अहले किताब की पैरवी से यहाँ पे रोका जा रहा, क्यों? क्योंकि वो फिर ईमान के बाद दोबारा काफिर बना देंगे, और तुम कुफ्र को कैसे कबूल कर लोगे जबकि अल्लाह की आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जाती है और अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। और जो शख्स अल्लाह से अपना रिश्ता उसवार कर ले, यानी उसको जोड़ ले, सीधा कर ले, वो सीधी राह पर आ जाता है। तो हम आपको अगर सीधी राह पे आना है तो क्या करना है? अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लेना है अपने को। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरना चाहिए, और तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। मेरे को और आपको आज ये बात यहाँ से तहिया करके उठना है क्या, कि हमें मौत आएंगी तो दीन इस्लाम पर आएंगी, हमारी जिंदगी इस्लाम के तरीके पर हम गुजारेंगे तो ही मौत इस्लाम पे आएंगे। जिंदगी पूरी गैरों के तरीकों पे गुजार रहे हैं तो फिर इस्लाम पे मौत कैसे आएंगी? कैसे ईमान पे मौत आएंगी? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जरूरी नहीं है। हमारे जिंदगी के तमाम तर जितने भी मामलात है वो सब अल्लाह के रजा के मुताबिक होना है, तो फिर अल्लाह की रजा पे आपको मौत आएंगे। वरना सारी जिंदगी आप लोगों की रजा के लिए पीछे पड़े रहे, लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक आप भागते रहे, अल्लाह ताला तो आपकी जिंदगी में कहीं पे था भी नहीं, और आखिरी वक्त में अल्लाह अल्लाह करते रहे। ठीक है, अल्लाह के मर्जी के आप बन जाना, अल्लाह के मुकर्रब बन जाना पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपनी जिंदगी पूरी इस्लाम के तरीके पर गुजारना है ताकि हमें मौत भी इस्लाम पर आए। और तुम सब अल्लाह की रस्सी को, यानी अल्लाह की किताब को, अल्लाह के कुरान को, शरीयत को मजबूती के साथ थाम लो, और इख्तिलाफ ना करो, झगड़ों में मत पड़ो, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। क्योंकि जहाँ पे चार लोग हैं, जहाँ पे जमात है, वहां पे जरूर ऐसा होता ही होता कि इख्तिलाफ होता ही होता, क्योंकि हर एक की राय अलग है, हर एक का सोचने का तरीका अलग है, हर एक का घर अलग है, हर एक का लिविंग स्टाइल अलग है। अब इख्तिलाफ ही नहीं होना, ठीक है, लोग जमात में मिलके चल रहे हैं, उनके अंदर कोई भी जो है ना इख्तलाफ नहीं होना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इख्तलाफ तो जरूर होता, ठीक है, राय के मुख्तलिफ होना वो तो जरूर होता, लेकिन तुम उस चीज को तरजीह नहीं देना। बहुत सारी चीजों को तुम जाने दो, बहुत सारी चीजों को सामने वाले जाने दे। असल चीज जिसको हमें थामे रखना है वो क्या है? तौहीद का झंडा लहराते रहना है। असल चीज जिसको हम थामे रखना है वो हमारा दीन है। हमारे दीन में कमजोरी नहीं आना, हमारे आपस में जो इत्तेहाद है उसके अंदर कमजोरी नहीं आना। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम लोग आपस में दुश्मन थे, और तो अल्लाह ने तुम्हारे, यानी ये बात हो रही जो मदीना में जो दो कबाइल थे मुशरिकीन के, औस और खजरज, वो इस्लाम से पहले आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। कबीले दुश्मन थे आपस में एक दूसरे के, और सालों से, कई सालों से दुश्मनी चलते वाली थी, लेकिन जब दीन आया तो पूरे दुश्मनियां खत्म हो गए। अल्लाह के खातिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भाई भाई बना दिया उन लोगों को। तो दीन ऐसी चीज है, दीन दुश्मनियों को मिटाने वाली चीज है, दिलों की नफरतों को दूर करने वाली चीज है, आपस में इत्तेहाद पैदा करने वाली चीज है। तो हम मुसलमानों को इत्तेहाद को लाजिम पकड़ना है। तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा और उसके फजल करम से भाई भाई हो गए। तो अल्लाह जो दिलों को जोड़ता है, इंसान अपनी कोशिशों से दिलों को नहीं जोड़ सकता। मैं इनको बहुत माल दे दूंगी, इनको ये चीज दिला दूंगी, इनको ये कर दूंगी, मेरे गर्विदा बच जाएंगे, मेरे तरफ आ जाएंगे, नहीं। बल्कि सच्ची मोहब्बत जो दिलों में पैदा होती वो अल्लाह सुब्हानहू तआला डालता। वो अल्लाह सुब्हानहू, खालिस जज्बे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता होते हैं। और तुम लोग जहन्नुम के खाई के किनारे पहुंच चुके थे, यानी अगर उसी हालत पे रहते तो जहन्नुम में जाके गिरते। तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। अल्लाह अपनी आयतों को इसी तरह खोल कर तुम्हारे सामने बयान करता है ताकि तुम हिदायत हासिल करो। और तुम में से एक ग्रोह ऐसा है जो भलाई की तरफ बुलाए, अच्छे कामों का हुक्म दे। यानी हर दौर में एक ग्रोह, एक ऐसा ग्रोह होना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो, जिसका काम ही क्या हो? लोगों को भलाई की तरफ बुलाना, अच्छे कामों का हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना, और वही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो मैं और आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो क्या है? अपने को अल्लाह अल्लाह रसूल की तालीमात को आम करने वाला बनना। अगर खुद नहीं उसको कर सकते तो कम से कम जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से क्या है? बशारत है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह कामयाबी की बशारत दिए किन लोगों को? जो अल्लाह के दीन को आगे फैलाने में हिस्सा डालते हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो फिरकों में बट गए, हम ये फिरके के, तुम वो फिरके के, वो फिरका जहन्नम, ये फिरका जन्नती, नहीं, बल्कि हम सबको अल्लाह के रस्सी, कुरान को, सुन्नत को मजबूती से थाम के रखना है। और उनके पास निशानियां आ जाने के बाद आप में से आपस में इख्तलाफ किया, और उन्हीं के लिए बड़ा अजाब है। जिस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे, यानी कयामत के दिन, और कुछ चेहरे काले होंगे। जिनके चेहरे काले होंगे उनसे कहा जाएगा, तुम लोगों ने ईमान के बाद कुफ्र को क्यों कबूल कर लिया था? तो अपने कुफ्री की वजह से अजाब का मजा चखो। और जिनके चेहरे चमकते हुए होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे।
जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें आपको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह दोनों जहान वालों में से किसी पर जुल्म का इरादा नहीं रखता। और जो कुछ आसमानों और जमीन में है अल्लाह की मिल्कियत है, और तमाम काम भी आखिर अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतर लोग हो जो इंसानों के लिए पैदा किए गए हो। यहाँ पर हमारी जो मुसलमानों की उम्मत है, यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको खिताब है कि तुम कौन हो, जरा पहचानो, अपनी अपनी पहचान तो देखो, तुम कौन हो। तुम खैर उम्मत, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। बनी इसराइल से मनसब ले लिया अल्लाह ताला, यहूद और नसारा को पीछे कर दिया अल्लाह ताला, क्योंकि वो लोग नहीं माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला वो मनसब, अल्लाह ताला के चुने हुए होने का वो जो इकराम थी, जो इज्जत थी, वो हम लोगों को दिए, उम्मत मोहम्मद को दिए। तो कुन खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों, क्या सिर्फ यही चीज अल्लाह रसूल के दावे करने के लिए हो, हम नबी के शहदाई हैं, हम जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान हैं, और खूब खूब नाते पढ़ते जाना, और खूब खूब जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ाया करना, और नमाज का टाइम जाता ही रहता। ठीक है, और बाकी चीजों का कोई लिहाज नहीं रखना, ये नहीं है खैर उम्मत। खैर उम्मत क्या है? उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम्हारा काम क्या है मुसलमानों? तअमुरूना बिल मारूफ, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकरी, और लोगों को बुराइयों से रोकते हो। कर रहे हम लोग ये। मुसलमान होने की जिम्मेदारी है ये। मुसलमान होने का टाइटल सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल गया, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी को मुसलमान पैदा करे, तो उसके साथ ये ड्यूटी लगी हुई है कि खुद भी अपने आप को जहन्नुम से बचाए, और अपने साथ वालों को भी जहन्नुम से बचाने की तरफ जो कोशिशें करे। तो तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, हमारी जिम्मेदारी हम लोगों को बताई गई। व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। वलौ आमन अहलुल किताब, और ये अहले किताब, ये यहूद ये नसारा, अगर वो भी ईमान ले आते, लकान खैरन लहुम, तो उनके लिए भी बेहतर होता। वो भी मुसलमान बन जाते तो उनकी भी आखिरत बच जाती। मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल काफिरून, तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है? काफिर है, फासिक लोग हैं, और थोड़े मुमिन है, बाद उनके अंदर मुमिन है, जिस सलमान फारसी है, और बहुत सारे आज भी देख लीजिए, कई यहूदी है, कई ईसाई है, जिन लोगों के सामने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम पढ़ा जाता है, जिन लोगों को हक मिल जाता है, फौरन ही दीन कबूल कर लेते हैं, इस्लाम के ऊपर आ जाता है। और कई ऐसे लोग हैं जो जानने बूझने के बावजूद, समझने के बावजूद आज भी नहीं इस्लाम लाते हैं। तो ये लोग कुछ ईजा रिसानी के सिवा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे जंग करेंगे तो पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है कि आप इन लोगों के इस्लाम नहीं लाने पर गमगीन मत होइए। इन लोग सिर्फ मुंह के बातों से आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, फिर कोई उनकी मदद को ना आएगा। वो जहाँ कहीं भी होंगे उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है, इल्ला ये कि वो अल्लाह की पनाह में और लोगों की पनाह में आ जाए। वो लोग अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो गए, और उन पर मिस्कीन मुसल्लत कर दी गई। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, अम्मी और गुनाह कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानी और हद से तजावुज करने की वजह से हुआ। ये लोग बराबर नहीं है, अहले किताब का एक ग्रोह हक पर है, यानी सब अहले किताब भी बराबर नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे भी है जिनको जब अल्लाह रसूल की बात पहुंचती तो वो ईमान ले आते। वो लोग रातों को अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं, जैसे सलमान फारसी और उनके फॉलोअर्स। वो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, और भलाई का हुक्म देते हैं, और बुराई से रोकते हैं, और खैर के कामों में जल्दी करते हैं, ताकि कोई रुकावट नहीं आए, मौत ना आए। और खैर के कामों में हमारे को भी क्या करना है? जल्दी कर लेना हो, कल करती हूँ, परसों करती हूँ, मौका ही छिन जाएगा, बीमारी आ जाएगी, कोई और चीज हो जाएगी। जैसे ही नेकी का कोई काम सामने आए फौरन उसको कर लेना चाहिए, वरना तौफीक क्या ही मालूम की तौफीक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला छीन ले। और वो लोग नेकी करने वालों में से है, और वो लोग जो भलाई करेंगे और उसके अजर सवाब के लिए उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहे हैं? जो भी आप भलाई करेंगे, जो भी आप नेकी करेंगे, आपकी नेकी की अल्लाह नाकदरी हरगिज भी नहीं करेगा। जितना वक्त आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं सबर के साथ, किसी की पीठ में दर्द हो रहा, किसी के पैर में दर्द हो रहा, किसी के पेट में दर्द हो रहा, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये नाकदरी नहीं होती चीजों की, यही चीजें हैं जो अल्लाह की नजर में आपको कदरदान बनाएंगे। अल्लाह की नजर में आपकी कदरदानी की जाएगी इन चीजों की वजह से, उनकी नाकदरी नहीं की जाएगी। और अल्लाह तकवा वालों को खूब जानता है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र को कबूल कर लिया, उनके अम्वाल उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं आएंगे, और वही लोग जहन्नमी है, वो हमेशा उसमें रहेंगे। वो लोग इस दुनियावी जिंदगी में जो कुछ खर्च करते हैं उसकी मिसाल तेज हवा की है, क्योंकि ईमान का होना ये शर्त है आमन की कबूलियत के लिए। जिसके पास ईमान नहीं है वो जितना भी खर्च करेगा उसकी मिसाल कैसी है? तेज हवा की सी है, जिसमें कड़ाके की सर्दी हो, जो ऐसी कौम की खेती को जा लगे जिसने अपने आप पर जुल्म किया और उस खेती को तबाह कर दे। और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ब खुद अपने आप पर जुल्म किया है। क्या कैसे जुल्म किया है? ईमान नहीं लाके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के पीछे
पीठ के पीछे छोड़ के, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इंसान ईमान वाला नहीं होगा क़यामत के दिन उसकी कोई नेकी कबूल नहीं करेगा। ईमान वाला तो कितनी बड़ी नेमत है, आप सोचिए। दीन इस्लाम पे पैदा होना और मुसलमान पैदा होना और दीन पर जिंदगी गुजारना कितनी बड़ी नेकी है। क्या अगर हम लोग मुसलमान ना होते नाउज़ुबिल्लाह, तो हम लोग ढूंढ के कि अच्छा कौन सा दीन सही है ना, उसके बारे में रिसर्च करके मुसलमान हो सकते थे? इतनी थी हमारी हमारा दीन, हम पैदा हुए तो दीन हम खुद सही फॉलो नहीं कर सक रहे। हाँ, ये कि हम गैर मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह हमें पैदा करता तो हम दीन इस्लाम को पाते। तो इस नेकी की, इस बहुत बड़ी खैर की कदर करनी चाहिए मुसलमानों को। तो ए ईमान वालों, जो गैर मुस्लिम, तुम गैर मुस्लिमों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। यानी ईमान वालों को अपना दोस्त रखो, जो ईमान वाले हैं, जो दीनदार है, जो पक्के सच्चे मुसलमान है, ऐसे लोगों को अपना राजदार बनाओ। फासिकों को, झूठों को, काज़िबीन को, ईमान का ढोंग रचाने वालों को, मुनाफिकों को अपना राजदार मत बनाओ। वो तो चाहते हैं कि तुम्हें मशक्कत परेशानी लाहक हो। उनकी जुबानों से दुश्मनी जाहिर हो चुकी है, उनके सीनों में जो छुपा रखा है वो तो ज्यादा बड़ी अदावत है। अगर तुम अकल वाले हो तो हमने तुम्हारे लिए आयतों को बयान कर दिया है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अगर हमें अपना किसी को राजदार बनाना है तो किसको बनाना है? ईमान वालों को, सच्चे पक्के मोमिनों को। मुनाफिकों को, झूठों को, काजिबीन को या फिर काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि वो आपके राज को इफ्शा कर देंगे, आपके लिए बड़ा नुकसान का सबब बनेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन व मा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।